Hello everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about the third part of second chapter, that is collection of data. Let me recall the previous videos. In the previous two videos we discussed about the concept of primary and secondary data. Then we discussed about the mode of collection of primary data. Clear beta? In this video we will discuss about the qualities of a good questionnaire. Recall your memory. In the previous video, we discussed about the schedule and the questionnaire. Questionnaire as well as schedule. Both are list of questions, but if it is filled by the investigator himself by putting the questions from informant, it becomes schedule, and if it is filled by the informant or respondent, it is known as questionnaire. Now, what should be there in a questionnaire, dear students? Questions in questionnaires should be limited. Otherwise, the respondents or informants will not show interest in filling the questionnaires. That's why, in order to retain the interest, it is very important to keep less number of questions in questionnaire. Then, language of the question should be simple and clear. It can easily be understood by the respondent. Questions must be placed in proper order. अगर हम सबसे पहले एक उसमें नेम डाल रहे हैं तो नेम सबसे पहले ही होना चाहिए और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में होने चाहिए. देन अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड. किसी तरह का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. कोई भी अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन बच्चों अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए. जैसे एक क्वेश्चनर बनाया, मैंने उसमें लिख दिया कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, किसी स्टूडेंट से मैं ये पूछ रही हूँ, इट विल बिकम अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. देन क्वेश्चन शुड बी in a manner such that it can be answered impartially. आसानी से आंसर दिया जा सके, बिना किसी झूठ के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के उसको आंसर दिया जा सके. अगर कोई मैंने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डाल दिए, जैसे कोई रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया या किसी पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया, तो हो सकता है लोग उसका आंसर गलत दें. मतलब मुझे ना तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालने हैं और ना ही मुझे ऐसे क्वेश्चन डालने हैं जिनका आंसर उसको पार्शियली देना पड़े. देन दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Yes, beta. Next topic. This is related with types of questions in a questionnaire. It is very important. Before preparing a questionnaire, you must keep in your mind that there are 4 possible types of questions. The very first one, this is about the simple alternative questions. Simple alternative questions means like yes or no. Do you have a motorbike? Yes or no. Then second type, MCQs. You are very much aware about the MCQ type questions, like how do you go to school? On foot, cycle, bus, scooter. Then the third one, specific information question. For example, in which class do you read? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. जैसे आपसे एज पूछी जाए, व्हाट इज़ योर एज, मीन्स ये MCQs नहीं है, यस नो नहीं है, पर बहुत छोटे आंसर्स हैं. देन द फोर्थ वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द ओपन क्वेश्चंस. इन सच क्वेश्चंस द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. The informant is requested to give his opinion on specific issues. For example, what can you say about lockdown in India during the present scenario? क्या complete lockdown हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन का फीचर क्या होना चाहिए? मीन्स ये आप पर है, ओपन क्वेश्चन है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो. सो लेट मी रिकॉल द 4 टाइप्स. द वेरी फर्स्ट वन, दीज आर simple alternative questions, then simple alternative questions, then MCQs, then third one is specific information questions, and last one is food. बच्चे आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आपको एक
क्वेश्चनियर बनानी भी है, ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा, क्वेश्चनियर आपको बनाना है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स का प्रोजेक्ट हमें करना है 20 मार्क्स का, तो ये उसका पहला स्टेप है. दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ क्वेश्चनियर. तो सब बच्चों को क्वेश्चनियर बनानी है, आपको टॉपिक मिल जाएगा अभी इन द एंड ऑफ द वीडियो. मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट्स अबाउट द फील्ड सर्वे. एक फील्ड सर्वे कंडक्ट करना है हमें. मान लीजिए कि हम 11th क्लास के बच्चों का कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि उनको जो पॉकेट मनी मिल रही है वो प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. द वेरी फर्स्ट स्टेप इट इज़ टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनियर विथ utmost care by keeping in mind the qualities of a questionnaire. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चनियर बनाना है एंड यू विल हैव टू कीप द qualities of a good questionnaire in the qualities of a good questionnaire while preparing the list of questions. Second, to decide the mode of inquiry, that is which method should be used. In the previous video we have discussed about that there are many methods like the direct personal investigation, indirect oral investigation method, then through local correspondence, then mailing method, enumerator method. तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है. देन अरेंज अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड मोड ऑफ द इंक्वायरी. उनको भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो इन्यूमरेटर के एबिलिटी, ट्रेनिंग और स्किल पर डिपेंड करेगा. सो उनको पर्पस भी बताना पड़ेगा और उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी. देन पायलट सर्वे शुड बी कंडक्टेड व्हेन द field of investigation is very large. Now what's about the pilot survey? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पायलट सर्वे के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज अबाउट द पायलट सर्वे. नाउ व्हाट्स अबाउट द पायलट सर्वे. पायलट सर्वे refers to a pre-testing survey, a try-out survey covering a very small sample of the universe of the study. देखो बच्चे, इसको समझने की कोशिश करिए. क्या हुआ कि मैंने पूरे के पूरे फतेहाबाद के 11 स्टूडेंट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कि जो उनको पॉकेट मनी मिल रही है वो सफिशिएंट है या नहीं है. मैंने एक क्वेश्चनियर बनाया और अब मुझे, आपको पता है कि इसमें कई सारे मेथड्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे. जो फतेहाबाद में है वहाँ के लोकल बच्चों के मैं इन्यूमरेटर मेथड से भी कलेक्ट कर सकती हूँ. जो आउटसाइड द फतेहाबाद है, टोहाना है, तो वहाँ के लिए मैं उनको क्वेश्चनियर मेल भी कर सकती हूँ. अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैंने एक क्वेश्चनियर बनाई. क्वेश्चनियर का मुझे प्री टेस्टिंग सर्वे करना है. एक इन्यूमरेटर्स को या एक्सपर्ट इन्यूमरेटर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे एक मीटिंग के फॉर्म में, और वहाँ पर मैं उनको क्वेश्चनियर दूंगी फिल करने के लिए. जब वो क्वेश्चनियर फिल करेंगे तो वहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि वेदर द लैंग्वेज इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, मतलब सिंपल और क्लियर है या नहीं है, कोई अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसका आंसर वो ना देना चाहें, कंट्रोवर्शियल हो. मीन्स इससे हम अपनी क्वेश्चनियर को टाइमली एक्सेस कर सकते हैं. हमें ये पता लग जाएगा कि हमने जो क्वेश्चनियर बनाया है वो ठीक है या नहीं है. सो इट रेफर्स टू अ ट्राई आउट सर्वे कवरिंग अ वेरी स्मॉल सैम्पल ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स का मतलब होता है total number of the items that are to be studied for an investigation. Now this helps an investigator to assess the quality of questionnaire and the way respondents respond to the set of questions. कैसे उसका आंसर देंगे और कैसे उसको assess किया जा सकता है. Now in assessing the quality and suitability of questions, it is quite significant. In assessing performance of the investigators, in designing a set of instructions for the enumerators, जो उसे बनाया है वो ठीक बनाया है या नहीं बनाया. In assessing the cost and time involved in the final survey, कितनी देर लगेगी, इसको फिल करने में कितना टाइम लगता है, और इस मेथड से डाटा कैसे कलेक्ट हो पाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द पायलट सर्वे, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ मूव टू द एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डाटा. When we collect the data, there may occur some errors. The very first error is related to the measurement of object.
मतलब कौन से वाले मेथड्स में कौन सा मेजरिंग स्केल अडॉप्ट किया है। अप्रॉक्सीमेशन लेवल मीन्स अप्रॉक्सीमेशन लेवल कितना लिया है, इन्यूमरेटर मेथड यूज़ हो रहा है, एस्टिमेशन में यूज़ कर रहे हैं हम, और अगर एस्टिमेशन कर रहे हैं तो कितना एस्टिमेशन हो रहा है। नाउ एरर्स अकरिंग ड्यू टू रॉन्ग रिस्पॉन्सेज बाय द रिस्पॉन्डेंट्स, हमने मेलिंग मेथड से भेजा था, जो क्वेश्चन ईयर हमारे पास आई है वो गलत रिस्पॉन्स दिए हैं, लोगों ने क्वेश्चन को गलत समझा है और उसका आंसर भी रॉन्ग आया है। नेक्स्ट, एरर्स अकरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ रिस्पॉन्स, लोगों ने प्रॉपर आंसर ही नहीं दिया। मैंने भेजे थे 1000 क्वेश्चनर्स भेजे थे, मेरे पास सिर्फ 500 क्वेश्चनर्स वापस आए। देन एरर्स अकरिंग ड्यू टू मिस कैलकुलेशन ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिकल एरर्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिए थे जिनका आंसर गलत आया है, लोगों ने उसको कैलकुलेट ही गलत तरीके से किया है। देन एरर्स अकरिंग ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप और ड्यू टू लैक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं कवर हुई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप था, दिस इज गैप। रिस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर भी एरर्स की अकरेंस हो गई, दैट इज एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डाटा। गॉट इट बेटा? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। बच्चे जो अभी हमने पहले वाले टॉपिक डिस्कस किए हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड विद द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट how the secondary data is collected. Dear student, secondary data is already in existence. Clear beta? This is already in existence because it has already been collected by some other investigator for his own study. हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेटर को सिर्फ ये डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को उठाना है, डाटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। नाउ देर आर टू सोर्सेज, one is the published sources and second is the unpublished sources. Sorry. Published sources like government publication and semi-government publications, report of committees and commissions, publications of trade association, publication of research institutions, journals, papers, publication of research scholars, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस लाइक UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा, ये पब्लिश सोर्सेज हैं। ये कुछ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट्स, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ भी अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, ये जनरल डाटा कलेक्ट करती हैं और उस डाटा को रिपोर्ट्स की फॉर्म में पब्लिश कर देती हैं। और अगर हमें कुछ चाहिए तो हम इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स के थ्रू ले सकते हैं और साथ में उसका सोर्स हम मेंशन कर देते हैं कि फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दिस डाटा। क्लियर बेटा? इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं। देन सेकेंड इज द अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज में भी क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे हर बच्चे की एवरेज और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट और वेट लेना है तो मैं डाटा बच्चों से कलेक्ट करूँगी, मतलब मैं एक एक स्टूडेंट की हाइट और वेट लूँगी और मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर मुझे आपके फ़ोन नंबर्स चाहिए तो फ़ोन नंबर्स मुझे एक एक बच्चे से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दीज फ़ोन नंबर्स आर ऑलरेडी इन द स्कूल रिकॉर्ड, आपसे पहले ही इसको कलेक्ट कर लिया गया था और जब मुझे यूज़ करना है तो मैं आपके फ़ोन नंबर ऑफिस रिकॉर्ड में से ले सकती हूँ। सो दिस इज़ अ अनपब्लिश्ड, मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको दे रही थी। पब्लिश्ड का मतलब होता है जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं वहाँ से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज़, जैसे न्यूज़पेपर में कई बार आर्टिकल्स आते रहते हैं, UNO की स्टडी है या अमेरिका की कोई स्टडी है, तो इस तरह से ये पब्लिश्ड हो गया। अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। क्लियर बेटा?
Move to the next. These are the important sources of secondary data. There are mainly two sources of important sources of secondary data. The very first is Census of India, and second is reports and publications of NSSO, that is National Sample Survey Organization. बच्चे इनकी फुल फॉर्म बेस की आपको लर्न करनी है. नाउ व्हाट्स अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया जो होता है ये आफ्टर 10 ईयर्स एक रिपोर्ट बनाई जाती है रिलेटेड विद द पॉपुलेशन. 2020-21 में ये अब ड्यू है, 21-22 में ये ड्यू है. 2011 में हुआ था, अब 2021 में सेंसस होगा. अब ये पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. इसमें क्या करते हैं बच्चे, ध्यान रखिए. सेंसस ऑफ इंडिया में इन्यूमरेटर्स को ट्रेन किया जाता है और वो जो इन्यूमरेटर्स होते हैं वो एक एक घर में जाते हैं. उनके पास एक प्रॉपर परफॉर्मा होता है, एक क्वेश्चन एयर होती है. उस क्वेश्चन एयर में वो सबसे क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर. अब इसमें क्या है, मेनली जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है. डेमोग्राफिक चेंजेस. डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब होता है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट. इसमें क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हैं. वन इज़ द साइज, growth rate and distribution of population. Second is population projections. Third is density of population. Density of population का मतलब होता है, density of population का मतलब होता है the number of persons residing in per square kilometer of an area. जैसे हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सॉरी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जोग्राफिकल एरिया बहुत कम है. इसलिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है. और अगर हम थोड़ा दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और भी ज़्यादा है. उसका रीज़न क्या है कि एरिया बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हमें सेंसस से. देन सेक्स कंपोजिशन ऑफ population, number of male, number of females after 1000 females, इसको हम कहते हैं सेक्स रेशो. इंडिया में सेक्स रेशो काफ़ी बायस्ड है, 924 फीमेल्स आफ्टर 1000 मेल. और अगर हम हरियाणा में देखें तो ये और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है. दिस इज़ अबाउट 870 फीमेल्स आफ्टर 1000 मेल्स. तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से पता लगती है, फ्रॉम द सेंसस मेथड. देन स्टेट ऑफ लिटरेसी. इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 69% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है और हरियाणा में ये थोड़ा सा कम है, इट इज़ 67.8%. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंसस मेथड. सेंसस मेथड, सेंसस ऑफ इंडिया ये मेनली डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करती है. गॉट इट बेटा. नाउ द सेकेंड सोर्स, दिस इज़ अबाउट NSSO. दिस इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस. It is another important source of secondary data. It is a government organization. Keep in your mind, it is a government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation. आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं. Government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Now, the reports and publications of NSSO offers statistical information of the following parameters. 1. Land and livestock holding. Livestock का मतलब होता है cattle. Land and livestock, लोगों के पास कितना livestock है, cattle कितने हैं. Housing conditions of migration, housing conditions and migration. Then employment and unemployment status in India. Then consumer expenditure in India. हम कई बार ये बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ क्वाइट हाई इन मुंबई एज़ कम्पेयर टू हरियाणा और पंजाब. वहाँ बहुत महंगाई है, इवन दिल्ली से भी ज़्यादा महंगा है. अगर दिल्ली में एक फ्लैट रेंट पर आपको नॉर्मली 14 to 15,000 में मिलता है तो मुंबई में आपको 35 to 40,000 में मिलेगा. दिस इज़ द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर. देन सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया. क्या मेन सोर्सेज हैं उनके, वेदर दे आर अर्निंग फ्रॉम primary sources like agriculture
or from secondary sector, that is from industry, then the tertiary sector, that is about from the services. So keep in your mind, NSSO डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी नहीं करता. डेमोग्राफिक प्रोफाइल दैट इज पॉपुलेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कौन स्टडी करता है? दिस इज सेंसस ऑफ इंडिया. ये आफ्टर 10 years इसको कंडक्ट किया जाता है. देन द सेकेंड वन, दिस इज अबाउट द NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर बेटा? ये आपको थॉरोली प्रिपेयर करना है, लर्न करना है. नाउ मूव टू द होमवर्क. These are the 10 questions. You are expected to write these questions in your fair notebook. Clear बेटा? अच्छे से करिए क्योंकि आपको fair notebooks prepare करनी है. It is expected the schools will be open very soon. जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो स्कूल खुल जाएंगे, तो आप अपना काम अपना रेडी करिए. हाँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कब खुलेंगे नहीं पता. प्लीज़ मुझे कॉल मत करिए कि स्कूल कब खुल रहे हैं. सो स्कूल का अभी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन आपको अपना काम प्रॉपरली करना है. ओके बेटा? सो स्टे होम, स्टे सेफ, डू योर वर्क सिंसियरली. गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे.